السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیحہ خان اور میں ہوں جویدیہ خان۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صفورہ ٹاؤن میں تیز برسات کے بعد فوری نکاسی آب کے امور کی انجام دہی چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کا میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کے ہمراہ علاقوں کا دورہ کیا گیا، جس میں بروقت نکاسی آب کی بدولت ٹاؤن کی شاہراہیں رواں دواں رہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ چیئرمین راشد خاصخیلی نے گڑھوں کو بھرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی سربراہی میں گزشتہ دنوں ہونے والی طوفانی برسات کے بعد صفورہ ٹاؤن میں نکاسی آب کے امور بر وقت سر انجام دے کر صورتحال معمول پر لائی گئی۔ اب علاقوں میں نکاسی آب کے ساتھ شاہراہوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کے ہمراہ شاہراہوں اور علاقوں کا دورہ کر کے از خود صورتحال کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے کہا کہ تیز برسات کے بعد دعووں کے بجائے عملی خدمات سر انجام دے کر مشکل مقامات پر بھی بر وقت نکاسی آب کے امور سر انجام دیے گئے، جس سے شاہراہیں رواں دواں رہیں۔ بلاخر تنقید کرنے والے اگر دیکھ سکتے ہیں کہ صفورہ ٹاؤن کی حدود میں موجود شاہراہیں کلیئر ہیں، اب سڑکوں کی بحالی کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹو انجینئر امداد سولنگی اور انچارج میونسپل سروسز حافظ عبید اللہ سڑکوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برسات کے بعد سے سڑکوں اور علاقوں میں موجود رہ کر عوامی مسائل اپنی نگرانی میں حل کروائے۔ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین ہوں، عوام کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں اور اسی لیے جب بھی عوامی مسائل حل کرنے کی بات ہو تو بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو نے اس موقع پر کہا کہ رین ایمرجنسی ٹیمیں تاحال متحرک ہیں۔ شاہراہوں کے بعد علاقوں کی صورتحال کو درست کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئر امداد سولنگی، انچارج میونسپل سروسز حافظ عبید اللہ اور دیگر معزز شخصیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ خبر شامل کریں گے ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال کا لیاری ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ، پانی کی نکاسی کے کاموں اور پمپنگ اسٹیشن کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ ٹاؤن چیئرمین لیاری اور میونسپل کمشنر نے مکمل بریفنگ دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بارش کے بعد پانی کی نکاسی کے عمل کو دیکھنے کے لیے ترجمان سندھ حکومت اور رکن صوبائی اسمبلی سمیتا افضال نے لیاری کا رخ کر لیا، جہاں عوام سے ملاقات کے ساتھ لیاری ٹاؤن کے چیئرمین عثمان ہنگورو اور میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال نے لیاری کی گلیوں میں نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا اور پمپنگ اسٹیشن کا بھی دورہ کیا۔ میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان نے ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال کو مکمل بریفنگ دی، بتایا کہ لیاری ٹاؤن میں نکاسی آب کا سلسلہ پمپنگ اسٹیشن سے چلتا ہے۔ اندرونی گلیوں میں لیاری ٹاؤن کی مشینری کام کر رہی ہیں، ڈی واٹرنگ پمپنگ کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے تاکہ عوام پریشان نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ لیاری ٹاؤن میں پہلے ہی 3 ایمرجنسی نافذ کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے اسٹاف گراؤنڈ پر عوامی خدمت میں مگن ہے۔ حماد اینڈی خان نے کہا کہ ہمارے دفتر کے شکایتی نمبر سمیت وائس چیئرمینز کو بھی جو شکایات مل رہی ہیں اسے فوری حل کروا رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال نے ٹاؤن کی جانب سے جاری کاموں پر تسلی کا اظہار کیا، کہا پیپلز پارٹی کے عوامی نمائندے ہر علاقے میں لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں، جبکہ مخالفین اپنا کام دکھانے کے بجائے صرف پیروپیگنڈا ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیاری ٹاؤن کی ٹیم کی کارکردگی پر انہیں شاباشی بھی دی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 47واں یوم شہادت ملی ٹاؤن کے چیئرمین جان محمد بلوچ نے اپنے دفتر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا، جہاں پارٹی کارکنان ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایصال ثواب کرتے دکھائی دیے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملی ٹاؤن کے چیئرمین جان محمد بلوچ نے اپنے دفتر میں بانی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت کی تقریب منعقد کی، جس میں پارٹی جیالو اور ارکان اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے عقیدت و احترام کا اظہار کیا۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی اور ان کی خدمات پر بھی روشنی ڈالی۔ آج چونکہ کراچی ڈویژن کے ڈائریکٹرز تھے کہ ہر سٹی ایریا اپنے سٹی ایریاز کے اندر اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو
खराज अकीदत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे PS 89 के तवस्सुस से हमने अपने कायद शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारे UCs, हमारे वार्ड्स और हमारे PS के तमाम ओहदेदारान यहाँ के जमा हुए और अपने कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए। और इसमें एक दो बातें ज़रूर बीच में आई, यानी नारे वो भी है कि भुट्टो तेरा एहसान है, एटमी कुव्वत पाकिस्तान है। रुकन सूबाई असम्बली राजा रज़ाक ने कहा, आज पीपल्स पार्टी जहां भी है इसका सेहरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और जियाले आज भी उनके मंशूर और हिदायत पर काम कर रहे हैं। आज 4 अप्रैल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के हवाले से इस दफ़ा पार्टी की आला क़यादत ने हुक्म दिया था कि हर सिटी एरिया वाइज यानी हर तालुका वाइज ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए थे, जिसमें हमारे ज़िला मरीर के 6 हलकों में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुए हैं, जिसमें तकरीबन 3 से 4 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। और मैं देख रहा हूँ कि कारकुनों में, वर्करों में अभी तक वो जोश, वो वलवला, वो नज़रिया अभी तक मौजूद है, जिसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद एक नज़रिए पे, एक फ़लसफ़े पे, और वो फ़लसफ़ा कुर्बानियों का है, वो फ़लसफ़ा जद्दोजहद का है। उसी जद्दोजहद और कुर्बानियों के फ़लसफ़े पे आज भी कारकुन मुत्तहद है, मुत्तफ़िक है और पुरजोश है। इस मौके पर जियालों ने खूब नारेबाजी भी की और इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी सियासी जिंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विज़न के मुताबिक आगे बढ़ाएंगे। गडाफ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच को यौम शहादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं शहीद भुट्टो सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि एक नज़रिया थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गडाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि शहीद भुट्टो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक नजरिया, एक सोच और अवामी ताकत की अलामत थे, जिन्होंने पाकिस्तान के महरूम तबकात को शनाख्त और हक के आवाज दिया। शहीद भुट्टो ने मुल्क को एक मुतफ़िक़ा आइन दिया, खारजा पॉलिसी को मजबूत बनाया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बावकार मुकाम दिलाया। उनकी क़यादत में अवामी हकूक, मजदूरों और किसानों के मसाइल को उजागर किया गया, जो आज भी हमारी सियासत के बुनियादी सुतून हैं। चेयरमैन ने मजीद कहा कि आज के हालात में शहीद भुट्टो के नजरियात की अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल सिर्फ अवामी फलाह, शफाफ हुक्मरानी और जमहूरी इस्तेहकाम में पोशीदा है। हमें नौजवान नस्ल को भुट्टो के फलसफे से रोशनास कराना होगा ताकि वो मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गडाफ अवामी खिदमत, बल्दियाती सहूलियात की बेहतरी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम जारी रखेगी ताकि शहीद भुट्टो के अवामी खिदमत के मिशन को अमली शक्ल दी जा सके। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और कौम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान की तामीर जारी रखेगी। मजीद आपको आगाह करते चले कि चेयरमैन करंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने पार्टी जियालों की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार की बरसी पे पार्टी मुनक्किद की। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कुरंगी और चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर PS 93 के सदर हबीब भंगर के ज़ेर एहतमाम यूनियन कौंसिल नंबर 10 में मुनक्कदा कुरान ख्वानी में शिरकत की और पाकिस्तान में एटमी कुव्वत के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एहसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर PS 93 के सीनियर नायब सदर नदीम अख्तर, जनरल सेक्रेटरी कामरान साबिर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अवेज मुस्तफा, UC 10 के वाइस चेयरमैन अदनान मुगल, UC 35 के सदर काशिफ गेचानी, यूनियन कौंसिल 10 के कौंसलर और अराकीन मेंबरान, UC नंबर 9 से जफर कायम खानी, दिलावर खान और जियाले और लेडीज विंग की सलमा बलोच, सिदरा, फेमीदा समेत जियालो और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर इस अज़्म का अहद किया गया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे और नजरियात को आगे बढ़ाते हुए अवाम की खिदमत, जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। गुलबर्ग टाउन में तालीम के फरोग के लिए अहम इकदाम सामने आया, जहां टाउन इंतजामिया ने तलबा के लिए खुसूसी तालीम कार्ड स्कीम का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने फेडरल बी एरिया के 5000 तलबा के लिए 10,000 रुपए मालियत के तालीमी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज कर दिया। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह के मुताबिक ये तालीम कार्ड सरकारी और निजी दोनों तालीमी इदारों के तलबा के लिए दस्तयाब होगा, जिसके जरिए तलबा नए तालीमी साल के आगाज से कबल ही अपनी यूनिफॉर्म, दरसी और स्टेशनरी की खरीदारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई की हालिया लहर के पेश नजर गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया अपने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इकदामात कर रही है। इस सिलसिले में न सिर्फ ये तालीम कार्ड मुतारफ कराया गया है, बल्कि सरकारी स्कूलों की बहाली और असातिज़ा की तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने मजीद बताया कि ये इकदाम जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुल रहमान साहब के विजन के मुताबिक किया जा रहा है, जिसके तहत दस्तियाब वसाइल से बढ़कर अवामी खिदमत को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरा प्रोग्राम तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा, जिसे गुलबर्ग टाउन इंतजामिया स्पॉन्सर्स और डोनर्स के ताउन से अमली जामा पहनाएगी। जबकि टाउन इंतजामिया ने अपने सालाना बजट में इस स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। ये तालीम कार्ड जमात सोयम से जमात हश्तम तक के तलबा के लिए मुख्तस किया गया, जिससे हजारों खानदानों को तालीमी अखराजात में नुमाया सहूलत मुयस्सर आएगी। मज़ीद आपको बताएं कि सोहराब गोट टाउन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 97 और चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम की जानिब से किया गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शर्की PS 97 में कायदे अवाम बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 97 और चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम की सदारत में कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के राब्ता एंड रिकॉर्ड सेक्रेटरी नुमान शेख, सीनियर नायब सदर जिला शर्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरवर खान गाजी और नायब सदर जिला शर्की दिलदार बरफत की खुसूसी शिरकत। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी PS 97 हुसैन बरफत, सेक्रेटरी इत्तलात PS 97 मीर अब्दुल समद बरोही, वाइस चेयरमैन सोहराब गोट टाउन मीर इमरान बरोही, सोहराब गोट टाउन के कौंसल मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल कौंसलर्स और मखसूस नशस्तों के नुमाइंदगान, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी खिदमत, जमहूरियत के लिए लाजवाल जद्दोजहद और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया अवामी खिदमत, जमहूरियत की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी पर मबनी है, जो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इसी नजरिए और मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और पार्टी कारकुनान इस अज़्म का इरादा करते हैं कि वो हर हाल में जमहूरियत, अवामी हकूक और मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी थी, आपको पता अकीदत पेश करने जाते हैं। तो इस साल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी था तो सारे प्रोग्राम्स वगैरह कैंसिल हुए थे। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की आदत की जो हिदायत थी, हर सिटी एरिया वाइज पे एक प्रोग्राम रखा है। तो आज PS 97 का जो यहाँ पर कुरान ख़ानी थी और उसके बाद लंगर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अभी भी आ रहे हैं, अपनी कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है अकीदत पेश करने के लिए, सलाम पेश करने के लिए आ रहे हैं। तो ये हर साल में ये हमारी सिलसिला है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो हैं जो ज़ालिमों ने पाकिस्तान का मुस्तक़बिल था और पाकिस्तान का एटम बम के बानी था, जिनने शहीद किया और पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आखिर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दर्जात की बुलंदी, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और कौम की खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ की गई, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। लाला अब्दुल रहीम का कहना था कि अल्लाह ताला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। खबर देंगे शाह लतीफ़ टाउन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 86 मलिर के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 86 मलीर के ज़ेर एहतमाम शाह लतीफ़ टाउन में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ईसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी मलीर के सदर और MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, टाउन चेयरमैन और PS 86 मलीर के सदर नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को शऊर दिया। भुट्टो शहीद मुल्क के गरीब और मजलूम तबकात के आवाज बने और इनकी सियासी जद्दोजहद आज भी पार्टी कारकुनों के लिए मशाल राह है। सबसे पहले मैं PS 86 के तमाम वर्करों को, दोस्तों को, ओहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि आज तमाम जो पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वर्सी का प्रोग्राम PS 86 में शालती में हुआ और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें लेडीज़, यूथ और तमाम जियाले मौजूद थे। और मैं समझता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे खातिर, पाकिस्तान के खातिर जान दी और आज वो सुरखरू कर गए हमें। आज हम तो क्या मुखालिफ भी कहते हैं कि भुट्टो साहब की वजह से हम सर ऊपर करके घूमते हैं और हम पाकिस्तान को एटम बम दिया, पाकिस्तान को जमहूरियत दी, पाकिस्तान को जो आपके सामने एक बात बार बार नहीं आती वो मैं आज बता रहा हूँ, कुछ सालों के बाद वो भी बात निकलेगी। वो ये बात है कि गवद्दर, अब किसी को पता नहीं गवद्दर भुट्टो साहब ने कैसे लिया और क्या जरूरत थी। हम समझते हैं कि उस वक्त भुट्टो साहब 40 साल 47 साल बाद का सोच रहे थे। दुनिया में ऐसा लीडर नहीं है कि अपनी सोच 50 साल बाद सोच रहा हो। आज वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे खातिर, पाकिस्तान के खातिर इतने बड़े स्टेप लिए। खत्म नबूवत, जब आज मौलवी साहब बात कर रहा था कि खत्म नबूवत हुजूर के खातिर, हम भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो खुद तो शहीद हो गई लेकिन पाकिस्तान को शहीद होने से बचा लिया। ये मेरा वर्ड जो है शायद बहुत सारे लोग समझेंगे कि उस वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ था और भुट्टो साहब के हवाले किया गया जब मुश्किल वक्त था। पीपल्स पार्टी की क़यादत को उस वक्त मुल्क दिया जाता है जब मुल्क के ऊपर बुरा वक्त होता है, जब हलवा खाने का टाइम होता है तो कोई और आ जाता है। भुट्टो साहब 2 टुकड़ मुल्क था, उस वक्त भुट्टो साहब के हवाले किया गया, बोला गया कि आप भुट्टो साहब आए संभालें। उसके बाद बीबी शहीद हुई और मुल्क उस वक्त 2 टुकड़, मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा खतरा था। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया कि आप संभालें, चारों सूबों की जंजीर कहते थे बेनजीर साहिबा को। फिर अभी जब जंग हुई तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सफारती महाज पे भेजा गया कि अब जरूरत है आपकी। मैं समझता हूँ कि जितनी कुर्बानियाँ भुट्टो खानदान ने मुल्क के अंदर दी है, इसकी मिसाल हुसैनियत से जरूर मिलती है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन और PS 86 मलीर के सदर नज़ीर अहमद भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क को आइन दिया और अवाम को बाख्तियार बनाया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो के फलसफे पर अमल करते हुए अवाम की खिदमत में मसरूफ है। इन्होंने मजीद कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और इनके मिशन को जारी रखा जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी जमहूरियत, इंसाफ और अवामी हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। तकरीब के दीगर शिरका में PS 86 के सीनियर नायब सदर अनवर बलोच, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल खान सवाती और सेक्रेटरी इतलात दिलजान मरवत समेत तमाम तंजीमी ओहदेदारान, तमाम UCs के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और विमेन विंग समेत ज़ेली तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान शामिल थे, जिन्होंने अपनी भरपूर शिरकत करके कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश की। अपने वर्कर साथियों का जिन्होंने आज अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये इज्तिमा बुलाया, और मुझे फख्र है और खुशी है कि मैं इसी हल्के में आपकी मेहरबानी से, आपके वोटों से, आपकी मोहब्बतों से जिला सदर होने के बावजूद आपके हल्के का MPA भी हूँ। ये आपकी मेहरबानी है, ये मेरे कारकुनों की मेहरबानी है, क्योंकि वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ बियदिल खैर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें याद करेगा, लेकिन हम उस शख्सियत के लिए जमा हुए हैं जिसकी आज 47वीं बरसी मनाई जा रही है। उसको आज तक कोई भी नहीं भूला। वो इसलिए नहीं भूला कि उसने हमें एक प्रोग्राम दिया, उसने हमें एक नजरिया दिया, उसने हमें जीने का ढंग सिखाया, उसने इस मुल्क में गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हारियों को हुकूक दिए, उसने इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए एटमी कुव्वत बनाया।
आगे बढ़ें और मजीद आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची हसन नकवी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अबरार जाफर की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और केमाड़ी में कार्रवाइयाँ की गई। मजीद आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर नसीरुल्लाह अब्बासी, असिस्टेंट कमिश्नर सलीम गडानी की हिदायत पर और डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली की ज़ेर निगरानी गुलशन इकबाल डिवीजन की हदूद 13 में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया और सामान जब्त कर दिया गया। मजीद आपको आगाह करते चले कि कार्रवाई में एडिशनल डायरेक्टर गुलफराज हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर्स उफरान शेख और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट के KMC ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी डिवीजन सुल्तानाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर किमाड़ी फहद की सरबराही में सुल्ताना मेन रोड के इतराफ कायम रोड और फुटपाथ कायम किया गया। आपको बताते चलें कि तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। होटल्स और दीगर मुतादिद सामान जब्त किया गया। बल्दियाती खबरों से फिलवत इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।